Hello again, dear students of 10th standard English medium. Continuing the natural resources, chapter 8 from the geography, social science of your syllabus. I will continue from the classification of resource. Previously we discussed about the natural resources, what it is, and how we are using the resources as food or source of raw material or energy resources. But in this topic, we will think about and discuss about the classification of resources. Please, I told you previously also, keep the book with you whenever you are watching a video so you can understand in a better way, because we are not in the classes, regular classes in classroom, you are not on benches, I am not in front of the blackboard, but we are preparing these videos. So keep the book with you, it will be easier for you to understand. So classification of resource. Now you all understand what are resources. Resources means anything which we use and with our expertise, with our understanding, which is useful for us, that can be called resource. So classification of resource is based on different types. Basis on the ownership, on the basis of ownership, on the basis of reavailability, and on the basis of distribution centers. Let us try to understand this. What is meaning of ownership? For example, I am the principal of Vardhman Vidyalaya, but that Vardhman Vidyalaya, I am an employee there, but I am the owner of my house. I have a small land at village. So that is individual ownership. Individual means I have a land part, farm it is, a building or a flat or a house, whatever it is. We are living, if we are owner, we have paid for that and we have on our name, so that is individual ownership. A person may be having, a very rich person may be having a very big buildings and many different properties on their name, and a poor person or all, they may not having anything, but that resource means particularly natural resources, so land part, that here individual. Then national, like we say government property, what we call, that is we can say national. Like army, they are human beings, but they are, that is natural resource. As a human being or vegetation and animals, everything is natural resource. But this army means here people working in the army, men and women working in the army, but that is national resource. They work for the nation. Same way trade means we are doing trade with different countries, with different people, different companies and all. So you can understand that international trade, company is doing trade with other countries and all, so that is national resource. Our earning, what we call GDP and all, different words are there, you must have heard, आपने सुने होंगे. तो ये जो हमारे कंट्री के लिए जो उसकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने के लिए जो ट्रेड करना पड़ता है, तो इंटरनेशनल ट्रेड हुआ तो वो नेशनल रिसोर्स हुआ. देन थर्ड इज ग्लोबल रिसोर्स. नाउ सी, this individual is owned by a person or a family. National resource, it is written owned by country or a region. It may be Gujarat also, it may be India also. Then global means globe, from word globe, global means of whole world. So all physical or non physical resources which are used for human welfare. Human welfare means लोगों के सबके भले के लिए यूज किए जाते हैं. For example, at present, again example, corona. So for that, different scientists, different countries, different institutes, they are searching for the vaccine and how it can be cured. Medicine and vaccine, two different things are there. But when that vaccine, for example polio vaccine, so that is a global resource, but by whom it is prepared? By the people. But here कॉमन ओनरशिप ऑफ ऑल कंट्रीज. सो ओनरशिप मीन्स वहां पे वो रिसोर्स है लेकिन जिसमें से जनरेट हुआ है. फॉर एग्जांपल जनरल कंट्रीज के सी है, सी में ऐसा पार्ट होता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आर देयर इन द सी एंड ओशियन, दैट डिफरेंट कंट्रीज नियर देयर बाउंड्रीज दे ओन दैट, बट जनरली वेयर नो वन नोज दैट, दैट इज ग्लोबल. सो दैट टाइप ऑफ थिंग्स कैन बी कॉल्ड ग्लोबल. सो दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. अब नेक्स्ट मुद्दा समझते हैं, रीअवेलेबिलिटी. ओके, but before that let us discuss this part. On page number 60 of your book a chart is given. Okay, on that it is written on the basis of the distribution, मतलब अलग अलग जगह पे कहाँ मिलता है हमें ये. तो यहाँ पे यूनिवर्सल मतलब सभी के लिए फ्री है. उसके लिए फॉर एग्जाम्पल यू नो दैट, अभी मैंने वाटर की बात की तो वाटर है,
ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सारी चीजें जो हैं यूनिवर्सल है. लाइक इट इज रिटन यूजफुल गैसेज इन द एटमोस्फियर. कोई किसी ने कबर्ड में बंद करके या अपनी मतलब कंट्री में उसको सील करके बाउंड्री में रखा हुआ है. इट इज नॉट लाइक दैट. It is universal resource. So that is oxygen. Means air is free. Yesterday means in the previous topic also I told you that many resources are there which are free from the nature. Then it is generally available resources. Which are they? They are land, soil, water, pastures. खुले घास के मैदान where animals, cattle can graze. वो वाले जो हैं. Then rare resources. Rare resources मतलब which are mineral, वो इसमें आएंगे. We will try to understand in this also. But rare resources means minerals. Like here it is written coal, gas, gold, uranium, iron, everything. Whatever, bauxite, whatever minerals you name, they are. But they are rare. Means they are going to exhaust. Today or tomorrow it will be over. That the resources will be over. We go on digging. Mineral oil है कि हमारे मेहसाना में ONGC है, so we can get lot of oil in Gulf countries and all. But someday it will come to an end because they are from the whatever is lying beneath the धरती के नीचे जो भी है, we are getting from that. So they are rare resources. And solitary it is a rare type, a new type. आप पहली बार सुन रहे होंगे. solitary मतलब एक अकेले किसी के पास है. तो क्रायोलाइट करके एक मिनरल है which is only available in Greenland. Greenland you know that it is a cold country in Europe. So Greenland में सिर्फ अवेलेबल है. तो solitary distribution center कहाँ कहाँ मिलता है इस तरह से. For example distribution center का in morning for milk, Dudhsagar Dairy has centers for Sahyog. They are distribution centers. In morning they are in many societies in front of, but in routine daytime there are Sahyog centers. So they are distribution centers. तो same way ये resources कहाँ कहाँ आपको मिल सकते हैं, कहाँ मिलते हैं. This is about that. The most important second part, that is re-availability, what we call renewable and non-renewable resources. So renewable resources and non-renewable resources are, we have to understand. Renewable जिसको renew, we can again and again we can go on using. They don't exhaust, वो खत्म नहीं होते हैं. So it is written sun, wind, water है, fresh water बहुत कम है, लेकिन water बहुत है. Three part of the world means land is on the globe or on earth, it is water. One part only is land, we know. So water is there. Animal, vegetation, birds, bioresources, plenty of they are available. But they can be renewed. Birds हैं, animals हैं, human beings also. We take birth, we die. We take birth, we die. So it goes on. This cycle goes on. So they are renewable. They can be called renewable. But non-renewable, what we discussed here, this part. So they are minerals, coal, gas, petroleum, etc. It may be CNG, LPG, whatever. These are non-renewable. एक बार गैस आपके गाड़ी में भरवाया, उसका धुआं हो गया, गाड़ी में एनर्जी यूज कर ली, but after that you cannot again use it. So these are the three things, three topics, three headings, according to which these resources, natural resources are divided, classified. Now, try to understand this thing. This is a very important, and this period in 2020 we are going from a very difficult situation. So we have to understand nature. Science and technology has done many good things, new things, latest things. Whatever you are watching, we are preparing. They are the gifts, or we can say boon from the technology. But what things we are doing wrong? So we have to understand this thing in natural resource only. This lesson. Planning and conservation of resources. Planning कि how we can use resource. आपके घर में, गाड़ी में, कहीं भी कोई भी चीज, जैसे गाड़ी में आपने पेट्रोल डलवाया, या तो आपके घर में कोई स्टॉक आया कि गेहूं, साल भर के गेहूं आपके मम्मी लोग रख लेते हैं, कोई भी चावल की चीजें हैं, दूध तो 1 या 2 दिन के लिए ही लाते हैं. सो दीज आर देयर ए प्लानिंग कि रोज हम कितना मिल्क लाना है, साल भर के लिए कितने गेहूं लाना है, कितना तेल लाना है. सो डिफरेंट थिंग्स, दैट इज प्लानिंग अकॉर्डिंग टू दैट. एंड देन कंजर्वेशन मीन्स आपने दूध ला के रख दिया तो 2 दिन 3 दिन ऐसा ही पड़ा रहेगा. नो, इट इज नॉट पॉसिबल, वो बिगड़ जाएगा. सो व्हाट उसको कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? दूध को उबालना पड़ता है. वी हैव टू बॉईल इट एंड देन वी कीप इट इन द रेफ्रिजरेटर सो इट रिमेन्स गुड. सेम वे गेहूं है तो गेहूं साफ करके अच्छे से उसमें दवाई रख के, या तो उसमें अलग से कोई ऑयल मिला के, मस्टर्ड, जो भी डिफरेंट उसको स्टोर किया जाता है. नीम के पत्ते रख के सुखा के डब्बों में भर दिया जाता है. सो दैट इज स्टोर्ड फॉर होल ईयर. कुछ नहीं होता है उसको. कोई चीज होती है सब्जी वगैरह, आलू, पोटैटो एंड ऑल दिस थिंग, 10 days 20 days कुछ नहीं होता है. प्याज होता है तो 2-3 months कुछ नहीं होता है.
सम वेजिटेबल्स आर देयर कि 2 दिन में यूज ना करो तो बिगड़ जाएगा. सो दीज आर द थिंग्स, बाय प्लानिंग वी कंजर्व देम कि कितने दिन तक उसका स्टॉक. नाउ दिस इज अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज. सो व्हाट इज द रीजन? अब हमें कि भाई भगवान ने दिया हुआ है, हियर दिस इज ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, उसको हम सोच नहीं रहे, लेकिन यू हैव सीन मेनी वीडियोस आल्सो, बिकॉज डे बाय डे पॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉल्यूशन क्या हो रहा है कि ये जो है ऑक्सीजन प्योर हमें नहीं मिल रही है. तो उसके कारण क्या है कि हमें प्लानिंग करना पड़ता है. व्हाट आर द रीजंस? अब क्यों सोचना है? क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना सारा दे दिया है. सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट अगेन कि हाउ वी कैन कंजर्व दिस थिंग. व्हाई वी हैव टू कंजर्व? यू थिंक. सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. Previously, before 100 years, before 1000 years, or before 10,000 years, the earth was the same size. Today what it is? But you see Bombay's condition, the population explosion, it is more than 2 crore. It is bigger than Australia's population. So what is happening on the seashore, on the coastal region? People have made big bungalows or flats and buildings. But every year when the monsoon season is there, there is a very pathetic condition. उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है. वो पानी लेवल, सी लेवल बढ़ रहा है. सो वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. आज हमारे पास खाने की कमी है या रहने की कमी है, जैसे कोरोना जैसी सोशल डिस्टेंसिंग. व्हाई? बिकॉज इन ए स्मॉल एरिया मेनी पीपल आर लिविंग. सो ये सारी चीजें हमें सोचनी है. सो रीजंस क्या है, क्यों प्लानिंग करना है? और कंजर्वेशन. कंजर्वेशन मीन्स वन मोर थिंग, इन द स्टार्टिंग ओनली देयर इज ए करेक्शन ऑन दिस. इन बुक इट इज रिटन कन्वर्सेशन, बट द वर्ड इज रॉन्ग. कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत, two-way twist. When I talk, you reply, you ask, I reply. So that is conversation. But here the word is conservation. So please make a correction also, dear children. That is conservation. CONSERVA. It is conversation. ऐसे आपकी पूरी एक करेक्शन एसएस में काफी है. उसकी एक बुकलेट है, वो जब आएगी बोर्ड से तो विल प्रोवाइड यू. एंड इफ इट इज इन द न्यू एडिशन आप में करेक्ट है तो इट्स ओके. लेकिन मेरे पास जो बुक है उसमें इसमें कंजर्वेशन लिखा हुआ है, वो होना चाहिए. आप में कन्वर्सेशन रॉन्ग है. अगेन कंटिन्यूइंग. सो अब व्हाई कंजर्वेशन इज नीडेड ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज. क्यों उसकी जरूरत है? यू नो, ओके, यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट. व्हाई, क्यों जरूरत है? सो स्कैरसिटी, कमी हो रही है. आज पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, खाने की चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, जमीन के भाव बढ़ रहे हैं. क्यों? क्योंकि सोर्सेज जो है रिसोर्सेज लिमिटेड है. When limited resources are there, there is scarcity, उसकी कमी होती है. और वो कमी के कारण फिर तकलीफ हो सकती है. तो वो कमी ना हो इसके लिए कि सब, जैसे हर पेरेंट, हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए किया है, आपके पेरेंट्स आपके लिए करेंगे. वो आपके लिए सेविंग करेंगे. क्यों? क्योंकि आपका फ्यूचर अच्छा हो. सो फॉर फ्यूचर जनरेशन सेम वे नेचर हैज प्रोवाइडेड मेनी थिंग्स. नेचर हैज प्रोवाइडेड मेनी थिंग्स. बट see this line what I have written, needs can be always satisfied. needs आपकी जरूरत का हमेशा, but greed can never be satisfied. greed मतलब लालच है, उसका कभी भी कोई satisfied नहीं कर सकता है. कि लालच को आप संतोष नहीं दे सकते हैं. आपके पास अभी फोन है, पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करके अपने मेहनत से आपको कमा के दिया है और आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है, वो कपड़े जो वॉट एवर इट इज, लेकिन आपको लगता है कि नहीं और सो दैट इज ग्रीड. Need always, each and every parent, each and every human being जो समझदार हैं, they try to satisfy the needs of their nearby. वो आप बच्चे हो या आपकी फैमिली हो. So needs can always be satisfied. This is very important thing. Always remember in life कि आपकी हर जरूरत, as a school, as a institute, as a teacher, as a principal, we try to satisfy your need. But greed, many times many odd questions are there by the parents or the students. But it is not possible enough for us. We cannot say when the school is going to open or what is going to happen, how we will manage, but whatever needs, minimum things are there, we are trying to satisfy. Coming back on the topic, so why it is needed? Because for the scarcity ना हो, कमी ना हो फ्यूचर में, for future generation. और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें बहुत सारे रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, रिप्लेस करने पड़ेंगे अपनी आदतों को. जैसे प्लास्टिक बैन हुआ है, धीरे धीरे आप देख रहे हैं, तो हम रिप्लेस क्या किया? वो प्लास्टिक की बैग की जगह कपड़े की बैग. घर में कपड़ा होता ही था, लेकिन और रिमूव करना पड़ेगा कई चीज. हमारी मेंटालिटी में से कई जो बेकार चीजें हैं वो रिमूव करनी पड़ेंगी. ओके, कंटिन्यूइंग नेक्स्ट, यू कैन सी दिस थिंग when we are explaining. At present you are not in the class, so particularly I can't say this boy or this girl is understanding and others are not. But beta, please try to read the lesson with this and try to understand yourself. This is a opportunity for you. आपके लिए एक मौका है सेल्फ लर्निंग, किस तरह से खुद सीखें. कई महान लोगों ने खुद सीखे, कई बार उन्होंने स्कूल भी नहीं देखी है. सो प्लीज बी सिंसियर. तो यहाँ पे ये नीड हुई.
अब हाउ, ये कैसे कर सकते हैं हम? सर ये नेचुरल तो हम कैसे कर सकते हैं, हमारे हाथ में, हमारे अकेले करने से क्या होगा? मैं अकेला ग्रीन कचरा ग्रीन डस्टबिन में डालूंगा और सादा दूसरा कचरा प्लास्टिक का ब्लू डस्टबिन में डालूंगा, मैं अकेला पानी नहीं बिगाड़ूंगा, तो नो, अलोन यू कैन। आप अपना काम कीजिए, धीरे धीरे दूसरे भी करेंगे। सो डोंट थिंक अदर्स आर नॉट डूइंग सो वी शुड नॉट डू। सो यूज रेशनली। रेशनली मीन्स उसकी जितनी जरूरत है उतना यूज कीजिए। कई बार ये होता है, इट मे बी हैपनिंग एट योर प्लेस ऑल्सो, आपके घर में भी हो रहा होगा, नल जब पंचायत का आता है या सोसाइटी का आता है आप चालू कर देते हैं, जब वो बंद होता है वहां से 1-2 घंटे बाद तभी बंद होता है, पानी जा रहा है, वो रोड पे जा रहा है या गटर में जा रहा है, क्या है। लेकिन फ्यूचर में धीरे धीरे आप देख रहे हैं, आप जब से पैदा हुए हैं, यू आर पेइंग फॉर द वाटर। वी हैव नेवर पेड फॉर वाटर व्हेन वी वर चिल्ड्रन, इट वॉज फ्री एंड फ्रेश वाटर एंड प्योर वाटर वॉज देयर। धीरे धीरे मिनरल वाटर, ये वाटर, वैसे आपको पे करना पड़ रहा है, क्यों? धीरे धीरे वाटर लेवल्स आर गोइंग डाउन, सो वी शुड यूज इट रेशनली। अनाज भी आप पैसे वाले हैं, आपके पास जितनी जरूरत है खरीद सकते हैं, लेकिन आप डिश में, खाने में अगर जूठा छोड़ते हैं सो इट्स रॉन्ग, क्योंकि दैट नेचुरल रिसोर्स बिलोंग्स टू द कंट्री, नेशनल और ग्लोबल है। वो दुनिया में कहीं भी गेहूं पकता है आप खा रहे हैं, वो पिज्जा के फॉर्म में खा रहे हैं या रोटी के फॉर्म में, बट वो गेहूं आपने नहीं पैदा किया है, और वो गेहूं और जमीन वो कुदरत ने दी हुई है। सो यू शुड रिस्पेक्ट, तो यूज रेशनली। खाना भी अपनी थाली में ना बिगाड़े, पानी का भी वेस्ट ना करें, ये सारी चीजें आप सब लोग, तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। होटलों में आज कितना खाना फेंका जाता है आप सब जानते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा। नाउ स्टॉप एक्सप्लॉइटिंग एंड वेस्टिंग। वही चीज एक्सप्लॉइटिंग, कई बार क्या होता है, अननेसेसरी आप बाइक लेके चल रहे हैं, फिर एक्सरसाइज के लिए स्पेशल साइकिल लेते हैं, उसकी जगह उसी तरह से यूज करें कि जिससे यू कैन स्टॉप वेस्टिंग। एक्सप्लॉइटिंग मतलब कि आपके पास पैसा है या आपके पास फैसिलिटी है, सो यू आर यूजिंग द रिसोर्सेज अननेसेसरीली, सो यू शुड नॉट। कई बार अभी ऐसा हो रहा है, इट इज नॉट ए नेचुरल रिसोर्स बट इन अदर एग्जाम्पल, कि आपके में 1 GB है, आपको लग रहा है कि पूरे दिन में नहीं यूज हुआ है मेरा, तो लाओ कुछ और। अननेसेसरी हमें नहीं करना चाहिए, जितना जरूरत है, भले आधा या 0.5 GB यूज हुआ है, वॉट एवर इट इज, बाकी का पड़ा रहे, हमें जरूरत नहीं है, वी शुड नॉट यूज इट। लेकिन हमें लगता है नहीं नहीं कुछ और, सो दैट अननेसेसरी थिंग्स वी आर स्टोरिंग देयर इन अवर माइंड, इन अवर हार्ट, सो वी शुड स्टॉप एक्सप्लॉइटिंग एंड वेस्टिंग। इंक्रीज द क्वांटिटी, हाउ वी कैन इंक्रीज? व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, तो पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन था वीट का या राइस का, वॉट एवर वी वर ग्रोइंग, इट वॉज वेरी लो, whereas compared to developed countries they were growing. So at that time in 70s and 80s में हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता था, हमें इंपोर्ट करना पड़ता था, बाहर से हमें अनाज मंगवाना पड़ता था। लेकिन what happened, slowly we prepared ourselves, our scientists, our farmers, they did well, and उस समय पानी की भी कमी थी, so instead of 1 season they started taking 2 seasons when bore wells, tube wells, canals and water means systems were set up कि उनके घर तक, मतलब उनके खेतों तक पानी जाए। सो स्लोली इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। एवरेज, फॉर एग्जांपल अभी पेट्रोल की जगह CNG यूज होता है, तो उससे इंक्रीज द क्वांटिटी कि आपके कम खर्चे में ज्यादा पॉल्यूशन ना हो एंड यू कैन रन मोर किलोमीटर्स, सो इंक्रीज द क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ये बात हुई। देन स्पेयर फॉर फ्यूचर के लिए, जिस तरह से जनरली बेस्ट एग्जांपल इज ऑफ प्रॉपर्टी, कि हर पेरेंट कुछ फ्यूचर के लिए अपने बच्चों के लिए पैसे, जमीन, मकान, ये सब सेव करके रखता है और उनके फ्यूचर के लिए बचाता है। सेम थिंग वी हैव टू कीप फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो, नॉट फॉर अवरसेल्व्स। वो इंडिविजुअल नहीं, नेशनल नहीं, ग्लोबल, दुनिया के लिए, क्योंकि अकेले आपको जीना नहीं है। जो आप रोड पे चल रहे हैं, जो पानी यूज कर रहे हैं, जहां जा रहे हैं, एवरीथिंग इज नॉट योर प्रॉपर्टी, इट इज ग्लोबल, इट इज एवरीवन्स, इट इज ऑफ सोसाइटी। सो फॉर सोसाइटी वी शुड स्पेयर फॉर द फ्यूचर, हमारे भविष्य के लिए, एंड कंजर्व स्ट्रिक्टली मतलब हमें कि हमने बचाने की क्या जरूरत है। अननेसेसरी कई जगह घास के मैदान निकाल के सिर्फ सब जगह लोग पत्थर का ही बनाते जा रहे हैं, तो वो नहीं, उसको कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है कि व्हेनेवर यू आर मेकिंग हाउस, तो 60% में आप हाउसिंग कीजिए, बाकी 40-60% जो खाली रखना है, इन दैट यू डू समथिंग ग्रीनरी। लेकिन आज नहीं हो रहा है, सिर्फ खुला रखते हैं लेकिन ग्रीनरी नहीं हो पा रही। सो वी शुड, एंड स्लोली गवर्नमेंट इज गोइंग टू, आप जानिए दिल्ली में जो ऑड इवन मेथड आई कि व्हीकल्स ज्यादा, तो वो जो चीजें इसी की तरफ है, वो नेचर को सेव करना है, तो ये हमें करना पड़ेगा। और कंजर्व मतलब उसका प्रोटेक्ट करके उसको फ्यूचर के लिए। We know in Mehsana district in many villages before 10 years, from last 10 years they have stopped, government परमिशन नहीं देती है बहुत गहरे ट्यूबवेल करने की। क्यों? क्योंकि वाटर लेवल लो जा रहा है,
फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, 1000 फीट से नीचे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उतना नीचे अगर आप जाएंगे तो फिर पानी सारा खींच लेंगे, फ्यूचर के लिए क्या रहेगा। तो गवर्नमेंट ने रूल किया था कि इससे नीचे नहीं, तो धीरे धीरे वो वाटर लेवल अब आया तो अब छूट दे रही है गवर्नमेंट। सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स शुड बी डन। वो सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, इट शुड बी डन बाय अस एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो। नाउ these are the all points which we have to understand and how resources can be conserved for us in the long term. in long term, ये आज की बात नहीं है, कल की, एक साल की नहीं है, लेकिन पीढ़ियों की है। for your generation बेटा, you may be getting 4G 5G and all this thing, but what about nature? You need this thing, everyone needs this thing also, everyone needs this resources also, which are whatever natural has provided. ये चीजें शायद नहीं होंगी तो आप चला पाएंगे जो नॉन रिन्यूएबल है, लेकिन रिन्यूएबल भी धीरे धीरे, अब सनशाइन, slowly we have started that thing, everywhere solar energy is used and slowly we are going towards that, but on the other side we are consuming something unnecessarily, तो वो भी हमें stop करना है. So here at last I will, before winding up this thing, what we have to understand in this, we have to change our mindset, we have to start thinking in a new way. So what we should, some words I have written here, that reuse, जितना हो सके चीज को reuse कीजिए. पैसे की नोट पुरानी हो जाती है तो भी वो 500 की नोट 500 की रहती है, तो हम उसको संभाल के यूज करते हैं. तो सेम वे कागज का, एज ए स्टूडेंट यू शुड, योर पेंसिल ऑल्सो अननेसेसरी शार्पनिंग इट, तो वो लकड़ियां कटेंगी. कागज भी आपका लकड़ी से बनता है, वुड से बनता है, फॉरेस्ट, तो एक एक कोने का उसका यूज कीजिए. तुरंत फाड़ दिया, एक लाइन गलत है तो कीप इट असाइड फॉर सम मैथ सम और समथिंग, फ्रॉम वन कॉर्नर टू अदर कॉर्नर यू शुड यूज इट. आपके पेरेंट्स कितनी मेहनत करके वो पैसे कमा रहे हैं. आज 30 से 40 50 रुपीज की एक नोटबुक आती है बेटा, उस समय शायद 30 रुपीज में तो हमारे साल भर की नोटबुक्स आ जाती थी. सो यू शुड रीयूज, रिवाइव, जो चीज फिर से चालू. आज क्या हो गया, कोई भी चीज रिपेयरिंग वो नहीं करते हैं, तो यू शुड लर्न कि उसी चीज का फिर से यूज कैसे करें, उसको रिवाइव कर सकते हैं. कई बार पुरानी चीज पड़ी होती है, हम तुरंत फेंक देते हैं, तो ठीक है आपके पास पैसे हैं, फैसिलिटी है, बट व्हाट अबाउट उसको रिवाइव कर सकते हैं. आप देखेंगे कई चीजें नेचर में रिवाइव होती हैं अपने आप, सिर्फ आपको जरूरत क्या होती है, पानी डालने की. कोई प्लांट होते हैं आपको लगता है सूख गया, लेकिन शायद पानी डालेंगे. सो सेम वे हियर इन अवर मेंटालिटी, इफ वी चेंज कि इसी को नया कर सकते हैं, इसी को नया कर सकते हैं, और जो करते हैं दे बिकम साइंटिस्ट और इनोवेटर्स. सो रिसाइकल, गवर्नमेंट ने बैग का किया है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, बैग में ही सारा प्लास्टिक का कचरा है, अदर है, ग्रीन है, वो सारा बांध के ऐसे करके फेंक देते हैं. सो इट्स रॉन्ग. वो प्लास्टिक की बैग जो है वो जितना हो सके यूज करें, रीयूज करें, और फिर लास्ट में उसको इस तरह से डालें कि उसको रिसाइकल किया जा सके. पेपर्स को भी किया जाता है. रिन्यू, नया, कुछ नया उसी में से करते जाए. रिन्यू मतलब टोटल न्यू नहीं, फिर से नया. रिड्यूस, जो अननेसेसरी हम कर रहे हैं उसको रिड्यूस करें. रिफिल, जो चीजें फिर से भर के बनाई जा सकती हैं, यूज की जा सकती हैं. सो दीज आर सम वर्ड्स, मेनी वर्ड्स आर देयर, पॉजिटिव ऑल्सो, नेगेटिव ऑल्सो, बट हियर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिलेट योरसेल्फ, अपने आप को जोड़ो कि नेचर को हम कैसे बचा सकते हैं. आप टीवी पे कितनी ऐड देखते हैं, समुद्र प्लास्टिक से भर गया है, मछलियां मर रही हैं, वॉट एवर इट इज हैपनिंग. तो रिलेट योरसेल्फ, अपने आप को रिलेट करो कि नेचर, दुनिया, देश हमारा है और हमें इसको बचाना है. सो जस्ट व्हाट यू हैव टू गिव, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग. एक पैसा आपको खर्च नहीं करना है, सिर्फ यू हैव टू चेंज योर मेंटालिटी एंड respect whatever government says, whatever your parents says, whatever your teacher says, whatever elders say. पुराने आपके घर में दादा दादी होंगे तो पूछेंगे कि कुदरत को, ये जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो सब क्या है, इनडायरेक्टली कुदरत को रिस्पेक्ट करने का है. सो रिस्पेक्ट एंड लास्ट रीथिंक, फिर से सोचो कि हम, अब ये कोरोना ने हमें समझा दिया है कि किस तरह से नेचर में वापस जाना पड़ेगा. सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि वी should rethink and we have to save the natural resources of our world. Students, think about all these things. Read in the next session about soil formation and all. 3 to 4 sessions we will complete this lesson. I will try to explain, and this will be coming in the next unit test. We will declare that in a short time. So go on preparing, and I will give a message also how to prepare the notes and all. Thank you.